Hey guys, welcome you all to my YouTube channel Voyager Chitara. Today we're gonna be talking about India and I will give you some reasons why you should visit India at least once in your life. To make this video easy to understand, I have divided this video in parts. So without wasting any time, let us start the video. Number 1. Geography. तो दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी जाते होंगे तो देखते होंगे कि वहाँ कौन सी जगह मशहूर है और उस जगह को विज़िट करते होंगे। फिर चाहे वो बीचेस हों, माउंटेन्स हों, रेगिस्तान हो या फिर स्नोफॉल एरियाज हों। वेल, इंडिया की ज्योग्राफी इतनी वंडरफुल है दैट यू विल फाइंड बीचेस हेयर इन गोवा, मुंबई एंड अदर सॉदर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स, mountains in the northern and eastern parts, and don't forget that the great Himalayas lies in India. इसके अलावा हिमाचल और कश्मीर की एक्सेप्शनल ब्यूटी को कौन भूल सकता है। तो कुल मिलाकर इंडिया की ज्योग्राफी आपको वो सब कुछ देती है जो एक ट्रैवलर ढूंढता है। यहाँ मानसीवराम जैसे एरिया भी हैं जहाँ साल भर बारिश होती है और ऐसे एरिया भी हैं जहाँ पर 6 से 7 महीने बर्फ पड़ती है। वी ऑल्सो हैव लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट एरियाज एंड प्लेन्स टू। And the one wonderful thing about India is that you can enjoy 6 different weathers here over the year. नंबर 2. कल्चर. वैसे एक बात तो है कि इंडिया में कल्चरली इतनी डाइवर्सिटी है कि विदेशों से आने वाले लोग यहाँ आकर बेचारे पागल ही हो जाते हैं। अब आप राजस्थान को ही देख लो, वो राजपूतों की शान, रंग बिरंगे कपड़े, स्वाभिमान से भरे लोग और रिच हेरिटेज। एक बार जो यहाँ आए उसका तो वापस जाने का मन ही नहीं करता। फोर्ट्स, पैलेसेस, वर्ल्ड फेमस फेयर्स ऑफ राजस्थान will definitely get you goosebumps. While when you come to the neighboring states like Punjab, everything just changes here. The land of Punjab is a land of warriors and the land of rivers. This is also the birthplace of the very first ever civilization in the world. One can easily overwhelmed with the joy by the easy acceptance between people and the energetic भांगड़ा and गिद्दा। और अगर आप कभी यहाँ आएँ तो अमृतसर का गोल्डन टेम्पल और वाघा बॉर्डर देखना ना भूलें। Then comes the turn of states of seven sisters. यहाँ का कल्चर और लोग दोनों ही बहुत अलग है। यहाँ हर राज्य अपनी एक अलग पहचान रखता है। Exceptional beauty and distinct culture is the identity of these states. To preserve these, government also provides securities to them. And if you go to the southern part, wow, you are in a different world now. Because जो भी आप यहाँ देखोगे वो बाकी इंडिया से बिल्कुल ही अलग होगा। साउथ के लोग मोस्टली धोती पहनते हैं और अपने कल्चर और रीति रिवाजों को लेकर काफ़ी प्राउडी हैं। यहाँ की संस्कृति की रिचनेस यहाँ की इमारतों और यहाँ के मंदिरों में झलकती है। मंदिरों की इतनी सुंदर कारीगरी शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। नंबर 3. हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर. इंडिया का नाम लेते ही ताजमहल का नाम सामने आता है। ऑल्दो ताज भी इंडिया की पहचान है और काफ़ी शानदार इमारत है, but there is a lot more to explore in India. I can give you hundreds of examples, but here I will restrict myself to only a few ones. Like Kailash Temple, Ellora Caves, Ajanta Caves, Rajasthan Forts and Konark Temples. इनमें से कैलाश टेम्पल तो इतनी अद्भुत इमारत है कि बहुत से वैज्ञानिक तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि इस मंदिर को किसी इंसान ने बनाया होगा, क्योंकि ये मंदिर एक ही पहाड़ को काट कर बनाया गया है जिसमें कहीं भी कोई जोड़ नहीं है। Other than these, Ellora and Ajanta caves depicts the Indian story in its own way. I can bet you will never regret after visiting these marvelous monuments. Well, I can keep telling you because the list is endless and this will make the video more longer. So let's move on to the next step. Number 4. इंडियन फूड. इंडियन फूड को कौन भूल सकता है. आवर स्पाइसी एंड डिलीशियस फूड हैज़ द पावर टू मेक एनीवन अ फूड लवर. From north to south and east to west, you will find absolutely different cuisines at different places. Some are traditional, some are modern, but they all have that unique Indian love and spiciness that makes it more delicious for foodies. Number 5. Festivals and fairs. शायद आप जानते होंगे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा त्यौहार और मेले मनाए जाते हैं. इंडिया के बड़े फेस्टिवल्स में से कुछ हैं दिवाली, दशहरा, होली और ईद.
दिवाली के समय पूरे इंडिया में जश्न मनता है और बड़े ही शानदार तरीके से फायरवर्क्स के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। होली में तो बड़े बड़े शहरों में बहुत से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, जैसे कि पुष्कर की होली, जिसमें मोस्टली फॉरेनर्स इंडियन कल्चर को एक्सपीरियंस करने आते हैं। राजस्थान के वर्ल्ड फेमस मेलों के रंगीन नज़ारे, गुजरात के कच्छ उत्सव के चर्चे सभी जगह मशहूर हैं। नंबर 6, रिलीजन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया कल्चरली और रिलीजियसली कितना महान है। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुइज़्म और सिखिज़्म, ये सभी भारत की महान धरती से ही निकले हैं। इन सभी रिलीजन्स से जुड़ी कुछ ऐतिहासिक जगहें हैं जिनका आनंद सिर्फ भारत में ही लिया जा सकता है, और इन सभी रिलीजन्स ने पूरी दुनिया में शांति का पैगाम दिया है। And maybe this is the reason that the billionaires of Western world come in India to understand the concept of life and spirituality. So guys, this was all about India. I hope you like this video, and if you like it, consider subscribing to my channel and hit that bell icon for any future updates on this channel. Hats off, bye bye.